Hi students, how are you? I hope you all will fine. In our previous video, we have discussed about pH of a solution, and I told you what is the pH of neutral solution when we say that the solution is acidic and when we say that solution is basic. Okay, so let's start today's video. Next thing is you have to know pH scale. What? pH scale. pH means आप समझ रहे हैं pH power of hydrogen ion concentration, and scale means a measurement, a way of measurement. Okay, so as we know that the solution may have pH from 0 to 14. A solution may have pH from 0 to 14. Okay, from 10 to the power 0 to 10 to the power minus 14. pH इस तरह से हम शो कर सकते हैं. For a solution it may be 0 and for some solution may be 14, on basis of which we decide that which one is acidic and which one is basic. Okay, so this representation on a scale is known as pH scale. Representation of pH from 0 to 14 in a scale parameter is known as pH scale. Okay, तो हमने क्या सीखा? फर्स्ट, what we have learned, for neutral solution pH is equal to 7. Okay, for neutral solution pH is 7. For acidic solution pH is less than 7. If pH is less than 7, then you can say that the solution is acidic. Okay, and one more thing, that whenever the pH will decrease, the concentration of hydrogen ion will increase. Okay, when pH will decrease, the solution will be acidic and the concentration of hydrogen ion will increase. Okay, so next, for basic solution pH is greater than 7. ओके, यहाँ पे H प्लस कंसनट्रेशन और यहाँ पे OH माइनस कंसनट्रेशन, ये दोनों चीज़ें हैं. तो जब भी हम एसिडिक की बात करेंगे तो हम हाइड्रोजन आयन कंसनट्रेशन की बात करेंगे. हाइड्रोजन आयन कंसनट्रेशन जैसे जैसे इंक्रीज करेगा पीएच आपका डिक्रीज करेगा और एसिडिटी बढ़ती जाएगी. ओके, और OH माइनस केस में भी सेम होगा. OH माइनस आयन कंसनट्रेशन बढ़ेगा तो बेसिसिटी बढ़ेगी और पीएच भी आपका बढ़ता जाएगा. 7 न्यूट्रल है, लेस देन 7 एसिडिक एंड मोर देन 7 बेसिक. ओके, सो हियर इज अ पीएच स्केल. अगर हम इसको एक स्केल में ड्रॉ करना चाहें, सो वी कैन शो लाइक दैट. 0, ओके, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 and 14. Okay, this is the pH. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 and last 14. ओके, सपोज ये है किसी. अब इसी स्केल पे हम क्या करेंगे, डिसाइड करेंगे. 7 आपका जो है, 7 आपका क्या है, न्यूट्रल है. ठीक है, हम इस साइड से इस साइड अगर आते हैं, इस तरह से अगर हम इसको इस तरह दिखाते हैं तो क्या होता है, एसिडिक कैरेक्टर या फिर कैसे एसिडिक
कैरेक्टर इंक्रीजेज या एसिडिटी increases. Okay, if we will move from here to here, basic character increases. Basic character increases. Okay, so that we can observe first from pH from 0 to 3, it means क्या है, strong acidic. If pH is from 0 to 3, you can say that it is a strong acid. For any solution, if you are finding that pH is between 0 to 3, you can say that that substance, that solution is strong acid. Okay, next, if pH from 3 to 5, 3 to 5 is moderate acidic. Okay, moderate acidic, it means you are not वेरी एसिडिक एंड नॉट वेरी लेस एसिडिक. ये क्या होगा, आपका बीच का रहेगा, ना बहुत ज़्यादा एसिडिक होगा और ना ही बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड, ना ही बहुत ही वीक एसिड. एंड above 5, you can say that pH from 5 to 7 weak basic, weak acid. Okay, so if you are finding that the pH of any solution is between 5 to 7, you can say that that solution or that acid will be weak acid. ओके, ये हो गया आपका. तो ये तीन चीज़ें हमें ऑब्जर्व की. पीएच अगर 0 to 3 होता है तो फिर क्या कहेंगे हम, स्ट्रॉन्ग एसिड. 3 to 5 मॉडरेट एसिड एंड पीएच फ्रॉम 5 to 7. 0 to 3 में आपके बहुत सारे एसिडिक आते हैं, जैसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जो मिनरल एसिड्स होती हैं वो 0 to 3 में आ जाती हैं. नाइट्रिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड्स, ये सारी एसिड जो होती हैं आपकी इसमें इस रेंज में आ जाती हैं. गैस्ट्रिक जूस भी आता है, क्योंकि गैस्ट्रिक जूस में भी उसका भी पीएच इस तरह से होता है. लेमन जूसेस इसमें आ जाते हैं आपके. ठीक, नेक्स्ट क्या है हमारा ऑब्जर्वेशन, पीएच फ्रॉम 7 to 9 is weak basic. If pH is 7 to 9 for a solution, you can say that it is weak acid, weak basic, या फिर weak base. Okay, fifth, pH from 9 to 12 moderate basic. Okay, and pH from 12 to 14 is strong base, either strong basic. Okay, so you should learn this. pH ranges from 0 to 14. If you want to show in power, you can write like this: 10 to the power this, 10 to the power minus 1, 10 to the power minus 2, 10 to the power minus 3, 10 to the power minus 4, 10 to the power minus 5, 10 to the power minus 6, 10 to the power minus 7, 10 to the power minus 8, 10 to the power minus 9, 10 to the power minus 10, 10 to the power minus 11, 10 to the power minus 12, 10 to the power minus 13, and 10 to the power minus 14. Okay, minus 40, well like that. तो हमने ये देखा कि strong, weak and moderate acids and bases, how they vary by pH values, कैसे वो pH वैल्यू के बेसिस पे वेरी करते हैं. ओके, तो सबस्टेंस की जो वैल्यू होगी, पीएच इंडिकेटर जो होगा, यूनिवर्सल इंडिकेटर से आप चेक करेंगे तो आपको पता चलेगा कि किस रेंज में है. ठीक है ना. अब पीएच को कैसे आप पीएच फाइंड आउट करेंगे, इसके लिए
कई सारे तरीके हैं, ठीक है ना। आप इसको पीएच पेपर, ठीक है ना, पीएच पेपर से आप देख सकते हैं। पीएच पेपर में आप बताऊंगा, पीएच पेपर एक होता है, एक ऐसा पेपर होता है जिसपे 0 to 14 तक के जो पीएच वैल्यूज़ हैं इनके अलग अलग कलर्स होते हैं यहाँ पे, ओके। अब उस कलर, अगर आप आपको डीप करने के बाद, किसी भी सॉल्यूशन में डीप करने के बाद जो कलर मिलता है उस कलर से हम उसको मैच कराते हैं, ठीक है। हम कलर से मैच कराते हैं। इफ द कलर विल मैच फ्रॉम दिस टू दिस और दिस टू दिस, वॉट एवर, यू कैन से दैट द pH वैल्यू ऑफ दैट सॉल्यूशन विल बी बिटवीन 2 to 3, from 3 to 4, from 5 to 6, from 7 to 8. Or on the basis of pH value you can decide that the solution is acidic or basic, strong acidic or moderate acidic or strong base or weak base, whatever you can decide, you can clear, okay. One more thing I like to repeat, H ion concentration, if H ion concentration increase, pH value decrease and acidity increase, ओके। ये तो अब याद रखिएगा, जब भी जिसका pH वैल्यू जितना ज़्यादा कम होगा वो उतना ही ज़्यादा एसिडिक होगा, ओके ना, बिलो 7। उसके बाद हम बेस के लिए वैसे ही करते हैं। बेस में जो जितना ज़्यादा 14 के करीब होगा, 14 के नियर अबाउट होगा, उसका बेसिक कैरेक्टर ज़्यादा होगा, और जितना वो 7 के नियर अबाउट होगा उसका बेसिक कैरेक्टर लेस होगा। तो इन चीज़ों को आप दिमाग में रखिए कैसे किस तरह से, ठीक है ना। कुछ चीज़ों के आपको याद रखने चाहिए, उनके पीएच कैसे होते हैं, ठीक है। तो जैसे मैं यहाँ पे कुछ फाइंड आउट कर रहा हूँ, बाकी आप बुक से पढ़ लीजिएगा। कुछ ऐसे जो अक्सर पूछे जाते हैं, जैसे पीएच, ठीक है ना। आप जैसे यहाँ पे सॉल्यूशन दे दीजिए, सॉल्यूशन पीएच, ओके। तो सॉल्यूशन अगर हम फर्स्ट की बात करें, जैसे 1 मोल हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ओके, 1 मोल हाइड्रोक्लोरिक एसिड 0, ओके। जो बैटरी एसिड्स होती हैं, जो बैटरी की एसिड्स होती हैं, उनकी पीएच वैल्यू 0.5 के लगभग होती है, इसमें ये भी बहुत ज़्यादा एसिडिक होते हैं, ओके। थर्ड, लेमन जूस फ्रॉम आर प्रेजेंट इन स्टमक, लेमन जूस 2.2 to 2.4, ओके। गैस्ट्रिक जूस का, गैस्ट्रिक जूस प्रेजेंट इन स्टमक 1.0 to 3.0, ओके। ये आपके पेट में होता है, स्टमक में, ये बहुत ज़्यादा एसिडिक होता है। इसलिए कभी कभी अगर हम एसिडिटी जब हमें होती है तो हमें इरिटेशन फील होने लगता है, ठीक है ना। और एसिडिटी दो तरह से हो सकती है, इफ़ यू आर टेकिंग मोर एसिडिक फूड और यू आर नॉट टेकिंग एनी फूड, बिकॉज एसिड वहाँ से प्रोड्यूस होती रहती है फूड को डाइजेस्ट करने के लिए। बट अगर आप एसिडिक पहले से ही एसिडिक फूड ले रहे हैं, या फिर आप नहीं ले रहे हैं कोई ऐसा फूड, तो भी एसिडिटी वहाँ पे डिक्रीज़ होती है, ठीक है ना। सॉरी, डिक्रीज़ नहीं, रिलीज़ होती है। और अगर आपकी इम्पटी स्टमक है तो इम्पटी स्टमक में भी कुछ एसिड्स रिलीज होती रहती हैं। इसलिए कभी अगर काफ़ी लंबे समय तक आप कुछ खाते नहीं हैं तो फिर आपको थोड़ी मिचली या वोमिटिंग टाइप की फील होती है। ये इसलिए होता है क्योंकि वहाँ पे एसिड रिलीज होता रहता है, ठीक है ना। सॉफ्ट ड्रिंक की जो एसिड होती है, वो एसिडिटी जो होती है वो 3.0 तक होती है, जो हमारे सॉफ्ट ड्रिंक्स होती हैं। 3.0, ओके, ये इतनी होती है। सम मोर टोमेटो के लिए आपका 4.4 to 4.0 to 4.4 इतना होता है रेंज, ठीक है ना। यूरिन, आपकी जो यूरिन होती है, यूरिन की इसका जो होता है पीएच वैल्यू 5.5 to 7.5। इनमें से आप एसिडिक भी हो सकती है, बेसिक भी हो सकती है, दोनों होती है, ठीक है ना।
यूरिन। ह्यूमन सलाइवा, ये जो अक्सर पूछा जाता है, ह्यूमन सलाइवा 6.8, ह्यूमन सलाइवा 6.8, जो हमारे सलाइवा जो हमारे माउथ में होता है। एंड दिस सलाइवा इज ऑल्सो हेल्प इन डाइजेशन ऑफ फूड। डाइजेशन ऑफ फूड स्टार्ट फ्रॉम माउथ एंड विद द हेल्प ऑफ सलाइवा। ओके, ह्यूमन सलाइवा की बात कर रहे हैं हम, किसी और एनिमल या किसी और की नहीं बात कर रहे हैं। ह्यूमन ब्लड एंड टीयर्स, ब्लड एंड टीयर्स, ठीक है, हमारे खून और जो आंसू होते हैं 7.4, ठीक है। ये थोड़ा बेसिक होता है, इसलिए कभी कभी आपके अगर रोते रोते आपके माउथ में चला जाता है तो उसका टेस्ट आप लोगों ने लिया होगा, जब आप कभी रोए होंगे तो बेसिक होता है, ठीक है ना। बाकी चीज़ें आप देख लीजिएगा, ये सारे ये मेन है, सब पूछे जाते हैं। समटाइम मिल्क 5.5 to 5.7, सॉरी 7.5, 5.5 to 7.5, ओके। तो ये आप इतने देख लीजिए, बाकी आप बुक से लिख लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, आप बुक से पढ़ते रहिए, ठीक है ना। तो ये हो गया आपके कुछ ऐसे बेसिक या एसिडिक जो पीएच होती है उसके बेस पे, ठीक है ना। लाइम वाटर का देख लीजिए, लाइम वाटर जो होता है, लाइम वाटर, ठीक है ना, लाइम वाटर का फार्मूला होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है ना। ये तो बेस होता है, पहले से ही पता है। तो इसका क्या होता है 10.5, ठीक है ना। ये बेस आपको पहले से पता है, बट वीक बेस है, ठीक है ना। वीक बेस है, इसका मतलब मैंने कहा था आपका कि वीक बेस कब कहेंगे, जब आपके 9 to 12 के बीच में अगर होता है पीएच वैल्यू, तो हम उसको कहते हैं वीक बेस, ठीक है ना। और 1 मोल सोडियम हाइड्रोक्साइड देखते हैं कि स्ट्रॉन्ग बेस का, 1 मोल NaOH 14, मीन्स ये क्या है, एक स्ट्रॉन्ग बेस है। मैंने बताया था आपको स्ट्रॉन्ग बेस सोडियम हाइड्रोक्साइड, और एक और था पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, जो कि स्ट्रॉन्ग एसिड सॉरी बेस की तरह ट्रीट होते हैं, ठीक है ना। तो अब कुछ न्यूमेरिकल्स हैं, कभी कभार पूछे जाते हैं, तो उनके बेस पे आप न्यूमेरिकल्स थोड़ा सॉल्व कर लीजिए। फार्मूला आपके लिए 2 फार्मूले हैं, मैं आपको फार्मूला बता दे रहा हूँ। फार्मूलाज क्या हैं, फर्स्ट है इफ H plus ion concentration is equal to 10 to the power minus x mole, okay, if H plus ion concentration is given to 10 to the power minus x mole, x mole it means 10 to the power minus 2 minus 3 by 4 जो भी whatever, तो आप कहेंगे then pH is equal to x, यहाँ से इसकी माइनस साइन हट जाएगी और पॉजिटिव 10 हट जाएगा, pH क्या हो जाएगा ये, ठीक है ना। इसको हम निगेटिव लॉगरिथम ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन भी कहते हैं। क्या कहते हैं, निगेटिव लॉगरिथम। ये 10 to the power x है, तो इसको अगर हम इसको लॉग लेते हैं तो ये क्या आ जाएगा, आगे आ जाएगा, ठीक है ना। तो निगेटिव लॉगरिथम इसका होता है। तो pH अगर आपको पावर में इस तरह से दिया है, ठीक है ना, जैसे एग्जांपल अगर हम कहते हैं कि 10 to the power 5 है, ठीक है, 5 मोल है इसका pH किसी चीज़ का, H प्लस आयन कंसनट्रेशन इतना है, तो हम क्या कहेंगे pH कितना हो जाएगा आपका 5 हो जाएगा, ठीक है। H प्लस आयन कंसनट्रेशन इज इक्वल टू 10 to the power minus 3 मोल, तो आप कहेंगे pH कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, ठीक है ना। अगर ये pH H प्लस आयन कंसंट्रेशन को दिखाते हैं इससे, ठीक है ना, ये कंसंट्रेशन होगा था इज इक्वल टू 10 to the power minus 2 मोल, तो आप कहेंगे pH कितना है 2 है, ठीक, ये चीज़ हो गई। नेक्स्ट H प्लस, ये मैंने आपको बताया कि दोनों का प्रोडक्ट जब होता है वो किसके इक्वल होता है, इज इक्वल टू KW, या क्या बताया था मैंने, KW क्या कहते हैं, KW को आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर, इज इक्वल टू 10 to the power 14, यस 10 to the power minus 14 एट 298 केल्विन, इट मीन्स एट रूम टेम्परेचर, ठीक है ना, एट रूम टेम्परेचर। एक रूम टेम्परेचर पे आपका इसका होता है pH इस तरह से, ठीक है।
दोनों का प्रोडक्ट जो होता है, प्रोडक्ट ऑफ H प्लस आयन कंसंट्रेशन एंड OH आयन कंसंट्रेशन इज इक्वल टू आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर इक्वल टू 10⁻⁻14। ठीक है, तो यहाँ पे pH अगर निकालेंगे इसका तो आपका 14 आ जाएगा। ठीक है ना। चलिए, जैसे देखिए अगर हम उसको अलग से निकालते हैं तो H प्लस आयन का क्या होता है, इज इक्वल टू 10⁻⁻14 अपॉन यहाँ पे क्या हो जाएगा, OH माइनस आयन। ठीक है ना। अब अगर OH माइनस आयन का निकालना है, इसका निकालना है आपको इस तरह से, तो हम क्या करेंगे फिर, ये 10⁻⁻14 होगा और आपका ये H प्लस नीचे चला जाएगा। तो इस तरह से हम फाइंड कर लेंगे, किसी एक का पता होगा तो हम दूसरे का फाइंड कर लेंगे। ठीक है ना। मोलरिटी आप समझते हैं ना, मोलरिटी नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम इन लीटर। नंबर ऑफ मोल्स किसी भी सब्सटेंस से कितने नंबर ऑफ मोल्स हैं, वो 11th में हम लोगों ने पढ़ा था। 11th में आई थिंक सेकेंड या थर्ड चैप्टर हम लोगों ने पढ़ा था मोल्स। तो नंबर ऑफ मोल्स पर लीटर वॉल्यूम जो होता है उसी को हम लोग मोल्स बोलते हैं। ठीक है ना, मोलरिटी है मोल्स। इसके पार्टिकल हमने बताया था कि एवोगैड्रो जो नंबर है उसके इक्वल होता है उसके। ठीक है, तो लिखिए कैलकुलेट द pH of our solution, pH of a solution obtained by mixing और डिजॉल्विंग। अब डिजॉल्विंग कहेंगे ज़्यादा अच्छा रहेगा। 0.02 मोल of hydrochloric acid in 2 liter of the solution. Okay, calculate the pH of a solution obtained by dissolving 0.2 mole of हाइड्रोक्लोरिक एसिड इन 2 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड कितना लिया गया है, 0.02 मोल लिया गया है और इसको किसमें मिलाया गया है, 2 लीटर्स ऑफ सॉल्यूशन मिलाया गया है। तो उस सॉल्यूशन की हमें क्या निकालनी है, pH वैल्यू निकालनी है। ठीक है ना। तो उस सॉल्यूशन की pH वैल्यू कैसे निकालेंगे, देखिए मोलर कंसेंट्रेशन ऑफ HCl। ठीक है, मोलर कंसेंट्रेशन ऑफ HCl या हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम इन लीटर। कितने नंबर ऑफ मोल्स है, 0.0 मोल है, मोल अपॉन लीटर कितने हैं, 2 लीटर्स हैं। तो जब इसको हम डिवाइड करेंगे तो हमें मिल जाएगा आपका 0.01 लीटर इनवर्स। ओके, ये मोल लीटर इनवर्स होगा, तो मोल लीटर इनवर्स ही हो जाएगा। ठीक है ना। अब इसको हम पावर में ले जाएंगे तो ये हो जाएगा आपका 10⁻⁻2 मोल लीटर इनवर्स। ठीक, मोल लिख सकते हैं, हम भी लिख सकते हैं, मोल लीटर इनवर्स हो जाएगा आपका, मोल लीटर इनवर्स। ठीक है। अब देखिए एक्चुअली HCl इज अ स्ट्रॉन्ग एसिड, यह एक स्ट्रॉन्ग एसिड है, इसलिए क्या होगा, इट डिसोसिएट कंप्लीटली ये कंप्लीटली डिसोसिएट होगा, मतलब HCl जो है ये H प्लस और Cl माइनस में डिसोसिएट हो जाएगा। ठीक है ना, वाटर में जब डिजॉल्व करेंगे तो ये डिसोसिएट हो जाएगा। ठीक, अब चूंकि pH वैल्यू आपकी यहाँ से H प्लस आयन कंसंट्रेशन इज इक्वल टू HCl, कंसंट्रेशन ऑफ HCl इज इक्वल टू 10⁻⁻2 मोल। ओके, ये है।
H प्लस आयन कंसंट्रेशन, आपका HCl कंसंट्रेशन क्या है 10⁻⁻2 मोल है। ठीक है, तो अब जिस तरह से अगर आ गया है तो क्या करेंगे, हेंस pH इज इक्वल टू आपका 2। pH कितना हो गया आपका 2 हो गया, समझ गया ना। कंप्लीटली डिसोसिएट होगा, इसलिए ये क्या होगा, कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाएगा, इसलिए इस सॉल्यूशन की जो होगी pH होगी वो 2 होगी। ठीक है ना। एक और सॉल्व कर लेते हैं क्वेश्चन। कैलकुलेट द pH ऑफ 10⁻⁻5 मोल NaOH। ओके, pH वैल्यू किसकी फाइंड करें, 10⁻⁻5 मोल NaOH सॉल्यूशन। ठीक, चलिए देखते हैं। तो देखिए NaOH क्या है आपका, एक स्ट्रॉन्ग बेस है, तो ये क्या होगा, ये भी डिसोसिएट होगा कंप्लीटली। इसमें Na प्लस प्लस OH माइनस, इसमें डिसोसिएट होगा ये। ठीक है ना, एक्वस और ये एक्वस, ये दोनों डिसोसिएट रहेगा। अब तो कंप्लीटली के लिए उस डिसोसिएट होगा तो इक्वल टू आपका इसमें हो जाएगा NaOH इज इक्वल टू 10⁻⁻5। ठीक है ना। अब 10⁻⁻4 किया। अब टू कैलकुलेट द pH ऑफ सॉल्यूशन वी शुड नो H प्लस। ठीक है ना, क्योंकि pH का हाइड्रोजन आयन के लिए ही हम डिसाइड करना, कंसंट्रेशन डिसाइड करेंगे pH कितना होगा। OH आयन से उससे OH ज़्यादा मतलब नहीं है उसको। ठीक है ना, तो इसके लिए हमें जानना होगा कि OH आयन कितना है। तो हमने एक फार्मूला बताया था आपको कि अगर H प्लस आयन कंसंट्रेशन आपको फाइंड आउट करना है, इस तरह से H प्लस फाइंड आउट करना, तो फार्मूला क्या होता था, 10⁻⁻14 अपॉन OH माइनस। ठीक है ना, तो आपका ये तो दिया ही है और ये भी हमने फाइंड आउट किया 10⁻⁻5। तो हो जाएगा 10⁻⁻ हटा देंगे तो 9 14⁻5 -9। ठीक है, तो pH यहाँ पे हो जाएगा इसका 9। ठीक है ना, यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है। ये स्ट्रॉन्ग बेस है, वहाँ पर भी स्ट्रॉन्ग एसिड था, इसलिए कंप्लीटली डिसोसिएट हो जा रहा है। तो जो आएगा वो इसका कंसंट्रेशन है, लेकिन हमें pH फाइंड आउट करने के लिए हमें H प्लस आयन को फाइंड आउट करना पड़ेगा। ठीक है ना, और H प्लस फाइंड आउट कैसे करेंगे, अगर हमें OH पता हो गया है, हमने एक फार्मूला बताया था आपको कि अगर OH और H दोनों में से किसी एक का कंसंट्रेशन अगर हमें पता है तो हम क्या कर सकते हैं, pH फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने कहा H प्लस आयन इज इक्वल टू 10⁻⁻14 अपॉन OH माइनस, ये कंसंट्रेशन इसका, और इसका कंसंट्रेशन क्या है हमें पता है कितना है, ये 10⁻⁻5 और इसको माइनस कर दिया 10⁻⁻9 हो गया। और 10⁻⁻ जो भी है उसका निगेटिव चार्ज हटा करके जो वैल्यू होगी वही उसका क्या हो जाएगा, pH हो जाएगा। ठीक है ना, तो इस तरह से क्वेश्चन कभी कभी पूछे जाते हैं बोर्ड एग्जाम में, तो इसको आप समझिए। अब इस तरह से अगर आपको OH माइनस दे दे, H प्लस दे दे, ठीक है, सपोज करिए आपको H प्लस दिया है, H प्लस आयन कंसंट्रेशन इज इक्वल टू दिया है आपका 10⁻⁻9। ओके, अब फाइंड OH, तो क्या करेंगे, OH ये आपको बताएगा ऐसे रहेगा, इज इक्वल टू कितना होता है 10⁻⁻14 अपॉन H प्लस आयन कंसंट्रेशन। तो 10⁻⁻14 अपॉन आप इसको लिख देंगे 10⁻⁻9, तो ये हो जाएगा आपका कितना 10⁻⁻5, जो कि हमारा ऊपर आया था 10⁻⁻5, मतलब प्रूफ हो गया। तो ये फार्मूला आप इधर से उधर करके दोनों में फाइंड कर सकते हैं, दोनों जगह ये फार्मूला काम करेगा आपका। ठीक है ना, तो ये आपके कुछ न्यूमेरिकल्स रहे। pH वैल्यू में आपको कुछ बेसिक ज़्यादा पूछा नहीं जाता है, बस आपसे ये पूछा जाएगा क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछा जाता, लेकिन जो भी पूछे जाते हैं वो यूनिक पूछे जाते हैं। ठीक है ना, तो आगे मेजरमेंट आपका होगा, किस तरह से मेजर करेंगे इसका pH वैल्यू, और एक न्यूमेरिकल कभी कभी पूछे जाते हैं, तो इसको अच्छे से आप लर्न करिए। 2 ही फार्मूले हैं, उन 2 ही फार्मूला का यूज़ करके हमको फाइंड आउट करना उनके आंसर।
और वीक एसिड का, स्ट्रॉन्ग एसिड का, वीक बेस का, स्ट्रॉन्ग बेस का, मॉडरेट एसिड, मॉडरेट बेस का पीएच वैल्यू कितना होता है, ये आपको लर्न करना होगा, ठीक है ना, ये आपको मेमोराइज करके रखना होगा। उसके बाद कुछ ऐसी चीज़ें हैं, कुछ ऐसी सब्सटेंस या सॉल्यूशन है जिनकी पीएच आपको याद होना चाहिए, जैसे ह्यूमन सलाइवा, ठीक है, आप डेली दूध खाते हैं, दूध पीते हैं, मिल्क का, कर्ड, आप ऑरेंजेस लेते हैं, इसके अलावा आप और भी बहुत सारे ऐसे एसिडिक बेसिक चीज़ें लेते हैं, उनके आधार, जैसे वॉशिंग सोडा हो गया, वॉशिंग पाउडर हो गया, उसका पता होना चाहिए आपको, ठीक है ना। और टोमेटोज हम खाते हैं, टैमरिंड खाते हैं, तो ये सारी चीज़ें जो हम डेली लाइफ में यूज़ करते हैं उसका कम से कम हमें पता होना चाहिए कि इसका क्या होता है, ठीक है ना, जिससे कि आपको प्रॉब्लम ना हो। ओके, तो अभी इस वीडियो के लिए इतना ही, बाकी चीज़ हम डिस्कस करेंगे कैसे मेज़र करेंगे, मेजरमेंट ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ एंड बेसिक सॉल्यूशंस, उनकी स्ट्रेंथ कैसे मेजर करेंगे, बाय यूजिंग यूनिवर्सल पेपर और बाय यूजिंग अदर मेथड्स जो भी होंगी उनको हम समझेंगे। उसके बाद रोल ऑफ पीएच इन एवरीडे लाइफ, ठीक है, कैसे हमारा पीएच जो होता है हमारी डेली लाइफ टाइम में किस तरह से रोल प्ले करता है। थैंक यू सो मच।